morning to class 8. Class 8. Topic. Force and pressure. Before today, we have discussed on the topic force and different types of forces. Mainly two types of forces are distant force and contact force. Distant force is that force which is applied without coming in contact with the object. Example is gravitational force, magnetic force, electric force, nuclear force. These are distant forces. Again, I am repeating the distant forces: gravitational force, magnetic force, electric force, nuclear force. These four are distant forces that is applied without coming in contact with the object. वस्तु ऑब्जेक्ट के संपर्क में बिना आए ये फोर्स लगता है। और डिस्टेंट फोर्स पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं: इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। डिस्टेंट फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। Gravitational force is that force which is produced due to the mass of the body. बॉडी के मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रोडक्शन होता है। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स में दो ऑब्जेक्ट को यदि आसपास लाया जाए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Gravitational force is attractive force. Gravitational force depends on only mass of the object or matter, and gravitational force has no repulsion in it. इसके पास रिपल्सन नहीं है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। Magnetic force, when two magnets comes closer to one another, then either attractive force or repulsive force is produced between them. यदि दो मैग्नेट को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो दोनों या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स में एक मैग्नेट का उदाहरण हम लेते हैं। मैग्नेट इज दैट ऑब्जेक्ट व्हिच हैज अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स both as well as directional nature. A magnet has three natures: attractive nature, repulsive nature and directional nature. Force. This is a magnet. A magnet has two poles. One is north pole and other is south pole. एक मैग्नेट जनरली आयरन का बना हुआ होता है और नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला है आपको Fe3O4। दिस इज योर नेचुरल मैग्नेट एंड दिस इज ए कंपाउंड ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेचुरल मैग्नेट। फॉर द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, magnetism is necessary. Magnetism, the property
which produces attractive nature, repulsive nature and directional nature in the matter or object is called magnetism. मैग्नेटिज्म के पास तीन नेचर है, एट्रैक्टिव नेचर, रिपल्सिव नेचर एंड डायरेक्शनल नेचर। तीन नेचर। मैग्नेटिज्म पाया जाता है मैग्नेटिक पदार्थों के बीच। मैग्नेटिक पदार्थ, मैग्नेटिक सबस्टेंस, मैग्नेटिक सबस्टेंस क्या? What is magnetic substance? That substance which is affected by a magnet or which is used to make a magnet is called a magnetic substance. That substance which produces which is affected by a magnet or which is used to make a magnet is called a magnetic substance. Example: iron, nickel, cobalt and some alloy. मैग्नेटिक सबस्टेंस आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है और कुछ एलॉय है। एलॉय मीन्स दैट सबस्टेंस व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एन एलॉय। All alloys are not magnetic substances. Some alloys are magnetic substances. But iron, nickel, cobalt, these are elements. These are metals, and these are magnetic substances. Now, magnet. Magnetic substance, magnetism, all these are discussed for the study of magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ने के लिए मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सबस्टेंस, मैग्नेट पर हम लोग विचार कर रहे हैं। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट that object which has attractive nature, repulsive nature and directional nature in it is called
ए मैग्नेट। मैग्नेट के पास 3 गुण होगा, एट्रैक्टिव नेचर होगा, रिपल्सिव नेचर होगा और डायरेक्शनल नेचर होगा। इन तीनों नेचर पर हम लोग विचार करेंगे टुडे, आज करेंगे। लेकिन एक मैग्नेट में, एक मैग्नेट छोटा भी हो सकता है, मैग्नेट बड़ा भी हो सकता है। हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पे विचार कर रहे हैं। मैग्नेट अपना फोर्स जो लगाता है उस पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट, द molecular formula of a natural magnet is Fe3O4 and it is known as magnetite or a lodestone। मॉलिक्यूलर फार्मूला नेचुरल मैग्नेट का, और इसको मैग्नेटाइट अथवा लोडस्टोन भी कहा जाता है। ये मैग्नेट नेचुरली प्राप्त हुआ है और इसी मैग्नेट को का स्टडी करने के बाद हम लोग अपने लेवल से मैग्नेट को बनाए हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट आता है, मैनमेड मैग्नेट आता है। तो दैट मैग्नेट विच इज ऑब्टेन्ड बाय नेचर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, इज कॉल्ड ए नेचुरल मैग्नेट एंड दिस इज द नेचुरल मैग्नेट। ये सबसे पहले हम लोगों को मिला। एंड आफ्टर देन we made some magnets by using some methods, that is called man-made magnet or artificial magnet. Now poles of a magnet, poles of a magnet। एक मैग्नेट का पोल क्या है? That point or that region where, that point or that region where the magnetism in a magnet is maximum is called its pole। A magnet has 2 poles, one pole is called south pole and the other is called north pole। Pole means that point or region where the magnetism is maximum in a magnet is called its pole। A magnet has 2 poles, north pole and south pole। The north pole is denoted by N and the south pole is denoted by S।
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, is below. This is a magnet. Figure. This is North Pole. This is South. Bar magnet. That North Pole and South Pole. How will we decide which is North and which is South? Then we will take an example of a magnet. एक मैग्नेट लेंगे, ये मैग्नेट के बीच में बीचों बीच एक धागा बांध देंगे, धागा लटकने के लिए क्रियाएं टांग देंगे। कैसे टांगे? टांगता हूँ, रुके रहो, टांग रहा हूँ, मैग्नेट को टांग रहा हूँ भैया मेरे। कैसे टांगूं? Yes, which of it? Like this. टांग दे, धागा बांध। This is called freely suspended magnet. Freely suspended magnet is that magnet which can move in any direction freely without feeling any force, external force. ये एक मैग्नेट को हम लटका दें बांध करके, तो ये वाइब्रेट करता रहेगा, इधर से इधर, इधर से इधर वाइब्रेट करता रहेगा। और जब अस्थिर होगा, जब रेस्ट में आएगा घूमते घूमते ये मैग्नेट, तो इस मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ की ओर और दूसरा एंड साउथ की ओर रहेगा। फिर इसको घुमा देते हैं, फिर ये खड़े हो जाएगा, तो ये फिर एक एंड नॉर्थ की ओर, दूसरा एंड साउथ की ओर जाएगा। फिर घुमा देंगे तो भी ये रेस्ट स्टेट में आएगा, तो एक इन नॉर्थ और दूसरा इन साउथ। जो इंड पहले नॉर्थ गया था वही इंड दोबारा भी नॉर्थ में रहेगा, वही इंड दोबारा भी नॉर्थ में रहेगा, वही इंड हर बार नॉर्थ में आएगा जब जब इसको हम वाइब्रेट कर देंगे और ये रेस्ट स्टेट में आएगा। जो इंड नॉर्थ की ओर स्टेबल करता है उसको नॉर्थ पोल, और जो इंड साउथ की ओर स्टेबल करता है उसको साउथ पोल। एक बात और ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिज्म ज़्यादा रहता है और साउथ पोल पे मैग्नेटिज्म ज़्यादा रहता है। ज़्यादा का मतलब मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। और जैसे जैसे हम बीच की ओर बढ़ेंगे, इधर से भी और इधर से भी, तो मैग्नेटिज्म घटता जाएगा और मैग्नेटिज्म घटता जाएगा, और मिडिल पॉइंट पर आते आते मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। दैट मिडिल पोर्शन ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पोर्शन ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का बीच वाला भाग न्यूट्रल पोर्शन, ये बीच वाला न्यूट्रल मैग्नेट। तो ये मैग्नेट का है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं मैग्नेट में। चाहे मैग्नेट जैसा भी हो, मैग्नेट को यदि हम तोड़ दें बीच से, ये तोड़ दिए बीच से, तो दोनों मैग्नेट बन जाएगा। ये भी मैग्नेट बन जाएगा और ये भी मैग्नेट बन जाएगा। ये पहले नॉर्थ पोल था, ये पहले साउथ पोल था। इधर से तोड़ दें, ये नॉर्थ ही रह जाएगा, इधर साउथ पोल आ जाएगा, और इधर साउथ ही रह जाएगा, इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा। जितने टुकड़े में बांटे हम, इसको भी तोड़ दें,
तो टुकड़े भी बन जाएगा मैग्नेट, जिसका एक इन नॉर्थ पोल और दूसरा इन साउथ पोल। मैग्नेट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके पास दो पोल होगा, हर हाल में दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। ये मस्ट है। और किसी भी मैग्नेट का बीच वाला पोर्शन पर मैग्नेटिज्म नहीं रहता है, और इस बीच वाले पोर्शन को न्यूट्रल पोर्शन कहते हैं, उदासीन बिंदु। आगे एक क्वेश्चन है कि मैग्नेट के पास एट्रैक्टिव नेचर होता है, कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन पर, इस बात पर हम लोग विचार करना कि फोर्सेस मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन मैग्नेटिक फोर्सेस। पहला, the two unlike poles attracts each other, that is, there is attraction between two unlike poles of the two magnets। दो मैग्नेट को जब हम अनलाइक पोल दोनों का एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो एट्रैक्शन होगा। फिगर में देखिए, एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट यहाँ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। एट्रैक्शन मैग्नेटिक फोर्स एट्रैक्टिव होता, ये एट्रैक्टिव है। एंड सेकेंड इज देयर इज attractive force between a magnet and a magnetic substance। ठीक है, is given magnet north pole south pole iron piece। This is a magnetic substance and this is a magnet। यहाँ attraction होगा, attraction
मैग्नेट और मैग्नेटिक सबस्टांस के बीच अट्रैक्शन होता है, चाहे साउथ पोल यहाँ रहे या नॉर्थ पोल और आयरन के बीच भी अट्रैक्शन ही होता है। Third, there is repulsive force between two like poles of the two magnets। दो मैग्नेट के लाइक पोल्स यदि करीब आ जाते हैं तब रिपल्सन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फिगर्स पहला, सेकेंड, रिपल्सन। जब लाइट पोल्स नजदीक आ जाएंगे तब रिपल्सन है, साउथ पोल नजदीक आ जाए तो भी रिपल्सन, नॉर्थ पोल नजदीक आ जाए तो भी रिपल्सन। यहाँ पर तीन केसेस आए। मैग्नेट का एट्रैक्टिव फोर्स अनलाइक पोल्स के बीच होता है अथवा एक मैग्नेट और मैग्नेटिक सबस्टांस के बीच होता है। एट्रैक्शन फिर से देखिए, एट्रैक्शन को, मैग्नेट के एट्रैक्शन को, when two unlike poles of two magnets comes closer to each other, then attractive force between them is produced, and another is when a magnet and a magnetic substance comes closer to each other, then attractive force is produced between them। एक मैग्नेट और एक आयरन को क्लोज लावें, एक दूसरे के नजदीक लावें तो मैग्नेटिक फोर्स एट्रैक्टिव हो जाता है। एंड रिपल्सिव फोर्स के लिए दो मैग्नेट चाहिए, यहाँ मैग्नेटिक सबस्टांस की जरूरत नहीं है। दो मैग्नेट के लाइक फोर्स जब नजदीक आएंगे एक दूसरे को तब रिपल्सिव फोर्स का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर रिपल्सिव नेचर, दिस इज रिपल्सिव नेचर एंड दिस इज अट्रैक्टिव नेचर। आयरन और मैग्नेटिज्म के बीच, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के बीच, और दो मैग्नेट के बीच जब अनलाइक पोल्स आएगा तो अट्रैक्टिव नेचर आएगा। और डायरेक्शनल नेचर कि when a magnet is freely suspended, again, when a magnet is freely suspended by using a thin thread, then the magnet comes at rest, then the magnet stands with one end along north direction and other end along south direction. This nature of a magnet is called directional nature of the magnet. That end which is in north direction is called north pole, and that end of the magnet which is in south direction is called south pole.
This is a magnet and magnetic forces. ज़्यादा पढ़ना नहीं है अभी, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है। और ये डिस्टेंस फोर्स है। डिस्टेंस फोर्स इज दैट फोर्स which is applied without coming in contact with the object. Another force, this is magnetic force. Electric force,